ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାମ ପଦେ ତୁମ ଏହି ଜଗତରେ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାମ ପଦେ ତୁମ ଏହି ଜଗତରେ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାକୋବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ। ସିଓନ ଠାରୁ ତୁମକୁ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମର ହୋମ ବଳି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ପରିତ୍ରାଣରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ସବୁ ନିବେଦନ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଭିଷିକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ତ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ନିଜ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କେହି ରଥରେ ଓ କେହି ଅଶ୍ୱରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହିତ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ଗୌରବ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୟା କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସାର ସ୍ଥଳ। ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଆମେ ଶରଣ ନେଇଛୁ, ଆଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। हे प्रिय प्रभु, ए पर्यंत तुम्हें आमानकर उपकार करे आसीच, ए पर्यंत तुम्हें आमानको संभाळी आसीच, ए पर्यंत तुम्हें आम प्रत्येकर जत्न तत्व नहींच। प्रभु धन्यवाद देचु। पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना सभा आम निज निज को समर्पण कर प्रभु। प्रभु तुम्हें आमानकर अंतरर सब बोझ, अंतरर सब निवेदन, आमानकर प्रार्थना, आमानकर समस्त विनती तुम्हें जान प्रभु। आमे कहवा पूर्वर, मागिबा पूर्वर से सब प्रभु तुमर सिंहासन निकट रे पहुँची सारी। हे प्रिय प्रभु, एत आम प्रत्येक को दया कर प्रभु। तुम उपासना कला बेले तुमरी पवित्र आत्मा तुम्हें आम को परिपूर्ण कर। जेपरी प्रभु आम आत्मा परिपूर्ण हो तुम स्तुति गान करवा एवं आज आमानकर प्रार्थना तुम निकट ग्राह्य हम। ये अनुग्रह तुम्हें दान कर। ये प्रार्थना सभार आरंभ शेष पर्यंत पवित्र आत्मांकर दिव्य चालन आम समस्त को परिचालित कर, कारण ये प्रार्थना यीशु नाम उत्सर्ग करुअछु। आमेन। आसंता माने प्रभुंकर प्रशंसा करू करू गोटे गीत बोलिबा एवं प्रभुंकर आराधना करिबा।
এই বেଳାভূমি পরে জীবনর এই বেଳାভূমি পরে সতে কি আসিব নেবা পাই মোতে প্রভু তুমে গৌরবে জীবনর এই বেଳାভূমি পরে কেবল কলিক সপন ঘেরি আসে শত দুঃখ অপমান ছলন কেবল কলিক সপন ঘেরি আসে শত দুঃখ অপমান চালিছি পথিক বন্ধুর পথে নীতিদিন পরাভবে জীবনর এই বেଳାভূমি পরে শেষর মৌড়া লগনে লভিবি তুমরি পরশ গোপনে জীবন শেষর মৌড়া লগনে লভিবি তুমরি পরশ গোপনে ভুলিবি দুঃখ ভরিব পরাণ আশিসর সৌরভে জীবনর এই বেଳାভূমি পরে সতে কি আসিব নেবা পাই মোতে প্রভু তুমে গৌরবে জীবনর এই বেଳାভূমি পরে জীবনর এই বেଳାভূমি পরে आमने प्रार्थना को जीवा पूर्वर आमने अल्प समय प्रभुंकर वाक्य ध्यान करिबा फॉर आवर short meditation this evening. We shall read from Holy Scripture, Gospel according to Saint Matthew chapter 26, 2 verses 38 and 39. Matthew तार 26 अध्याय 38 एवं 39 पद मुड़िया भाषा रे पाठ करुची आपण माने दया करे निज निज वर्षन को देखंतो से स्थान रे प्रभु का वाक्य रे ए प्रकार लिखा जाए सेतेबेले से समान को कहिले मोर प्राण मृत्युभोग करिबा परि अत्यंत शोकाकुल हेउछि तुमे माने एठारे रही मो संगरे जागी थाओ 39 पद पुणी से अल्प दूर आग को जाई उबुड़ होई प्रार्थना करू करू कहिले हे मोर पिता जदि होई पारे तेबे ए पानपत्र मोठारू दूर हेउ तथापि मोर इच्छा नुई मात्र तुंबर इच्छा प्रभु मान को तांकर पठित वाक्य एवं श्रवण रे आशीर्वाद करंतु एवं ए वाक्यर मर्म बुझिबा पई पवित्र आत्मांकर सहायता प्रदान करंतु आसंता माने इस समय प्रभुंकर वाक्य अल्प समय निमंते ध्यान करिबा श्रवण करिबा
मु विश्वास करुच्ची जे प्रभु आज आम संगरे ए वाक्य द्वारा कथा कहे मुझे आमर मंडलीर पालक रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह को आह्वान करी से समूह आसवे यही दिन गुड़िक प्रभु तांकर दास को बहुल भाव में व्यवहार करुँच जदिओ आमने ये जो कोरोना वायरस सकाशु आम निज निज गृह मानक अच्छु आमने उपासना गृह को आसी पारुना तथापि प्रभु आम को यही जो ऑनलाइन माध्यम रे तांकर सेवा करने आर उपासना करने प्रभु सुजोग दौरान आ प्रभु तांकर दास को व्यवहार करुँच वाक्य द्वारा मैंने आत्मिक भाव में अनेक लाभवान होइछु। आज संध्यारे मु विश्वास करुच्ची प्रभु तांकर दास को तांकर आत्मांकर अभिषेक दे आज आम मध्य व्यवहार करेंगे। ये समय मु प्रभु दास को आह्वान करी से समूह आसवे एवं प्रभु तांक अंतर जो वाक्य देइछन्ति ताहा से स्वच्छंदरे प्रकाश करेंगे। प्रभु दास रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण मान प्रत्येक को नमस्कार जनाए एवं आज गुरुवार प्रार्थना उपासना को स्वागत करुच्ची। आम मैंने किसी समय है ए प्रकार भाव में ऑनलाइन उपासना जरिया प्रभु चरण तले एकाठी हवा पारुअछु। कहक गले ए किछि मास मध्य यह आम अभ्यास परिणत हो गलानी। तेबे जहाँ भी हो प्रभु आम मान को दयाकोरी ये सब सुजोग देउछन्ति जो कि आम मैंने यही प्लाटफर्म जरिया आम मैंने विभिन्न स्थान रे थाई कि मध्य प्रभुंकर सहभागितार आसवा पारुचु एक बार एक सहित प्रार्थना उपासना करने को पारुअछु। आ प्रभुंकर पवित्र नामर धन्यवाद हो। आपण माने मध्य नियमित विश्वस्त भाव में ये उपासना गुड़िक जोग दौरान आ प्रभु आपण मान को आहुरी आहुरी आशीर्वाद करंतु। तेबे प्रिय माने आमने प्रार्थना रे किछि समय क्षेपण करने पूर्वर ईश्वर पवित्र वाक्यरु किछि ध्यान करिबा जहाँ माने गत किछि समय धरी चिंता करी आसीछु बा आलोचना करी आसीछु। आममानकर से प्रिय परिचित शास्त्रांश माथि लिखित सुसमाचार तार 26 अध्याय आमने विशेष भाव में तार 38 और 39 पद को ध्यान करुअछु। जदि बा माने अधिक पद गुड़ाक पाठ करिअछु किंतु आममानकर ध्यानटी विशेष भाव में 39 पद मध्य रही अच्छे। तेबे एथि पूर्वरु आम माने जहाँ आलोचना करिछु आ ये आलोचना रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट करिथिबा प्रार्थनार कथा माने चिंता करुअछु। से कौन प्रार्थना कले एवं किपरि प्रार्थना कले से विषय आम माने ध्यान करुअछु। जदि बा से ईश्वरंक पुत्र मनुष्य रूप में जगत रे चल प्रचल हेउछन्ति तथापि विभिन्न परिस्थिति रे विभिन्न समय रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न अवस्था रे से पितांकर चरण तले प्रार्थना रे आंठु पातुअछन्ति। प्रार्थना द्वारा से पितांकर निकटवर्ती हेउछन्ति। यह तांक जीवनर एक अविच्छेद्य अंग थिला बोली कहाजिव। से जे प्रकार की शिक्षा देवा विषय को गुरुत्व दौथिले किंतु शिक्षा देवार विषय केवल से शेष 3.5 वर्षर समय रे से सीमित रखिथिले किंतु प्रार्थनार विषय मु विश्वास करुछि बाल्यकालरू से अभ्यास को जारी रखिथिले। भाई भौणी माने अनेक समय आम माने वाक्यर शिक्षा देवा पाई होई पारे निजको समर्थ मने करि पारुना किंबा माने भाभी पारु जे एहा मोहर गोटे वरदान नुहे बोली भाभी पारु किंतु प्रार्थना होची ए प्रकार गोटे विषय जहाँ प्रत्येक विश्वासी सान किंबा बड़ बयसर कौनसी तारतम्य सेठारे रहे नाही कौनसी प्रकार विषयर तारतम्य रहे नाही। प्रत्येक व्यक्ति विशेष जे कही पवित्र परमेश्वरंकर श्री छाम को आसवा चाहे ईश्वरंक सहित किसी समय क्षेपण करने को चाहे ईश्वरंक सहित संपर्क रे रहिबा को चाहे ईश्वरंक निकट रे से किसी निवेदन करने को चाहे ईश्वरंक सहित किसी कथबार्ता करने को चाहे ताहले से माध्यमटी होची प्रार्थनार माध्यम। प्रार्थनार समय आम मान को प्रभुंकर निकटवर्ती हवार निमंते उत्साहित करे अनुग्रह दिए बा शक्ति जोगाए साहाय्य करे। आउ सेथिपाई तो आम माने घरे थाई कि कर्मक्षेत्र रे थाई कि यात्रा करुवा बेले जेकोसी समय जेकोसी स्थान रे आम माने रही कि प्रार्थना करिया को पारू जेतु प्रार्थना ईश्वर सहित एक जोगाजोगर विषय अटे। तेरे प्रभु जीशुंकर यह एक विशेष अभ्यास थिला बोली कहाजिव। से प्रार्थना को गुरुत्व दौथिले आउ सेथिपाई अनेक थर पवित्र शास्त्र रे ताहांक प्रार्थना करिबा विषय रे उल्लेख अछि
जदि बा से कौन सब प्रार्थना करुथिले सेही संपर्क रे सविशेष विवरण दिया जाए नाही, किंतु को स्थान मान करे को समय मान करे को घटना मान करे से प्रार्थना करुथिले से विषय रे पवित्र शास्त्र रे उल्लेख अछि। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवन ही आममानकर प्रार्थनार जीवनर निमंते एक सुंदर आदर्श अटे, एक सुंदर नमूना अटे, जहाँकर आदर्श को अनुसरी आज आपण एवं मु प्रार्थना करिवा दरकार। प्रभु जीशु केवल निजे प्रार्थना करुथिले ताहा ही नुहे, से मध्य आपणक पाई मो पाई एक प्रार्थना जहाकू कि आमने आदर्श प्रार्थना बोली कहू, से प्रार्थनाटी से शिखई देले, जेपरिक ताहांकर लोक माने ताहांकर पिला माने सर्वदा पितांक निकटरे से प्रकार भावरे प्रार्थना करिवे। आउ से प्रार्थना को आम माने प्रायतः उच्चारण करिथाओ। तेबे प्रिय माने से प्रार्थना को उच्चारण करिबा गोटे विषय, किंतु से प्रार्थनार स्तर रे से प्रार्थनार भाव अनुसारे से प्रार्थनार नियम अनुसारे से प्रार्थनार रीति अनुसारे जदि आममानकर व्यक्तिगत प्रार्थना सबको जदि आमने सजै दे पारिबो, आममानकर व्यक्तिगत प्रार्थना को जदि से आदर्श प्रार्थना अनुसारे बदलै दे पारिबो, तेबे आममानकर प्रार्थना निश्चित रूपे एक उपयुक्त प्रार्थना रे परिणत हबो, जहा स्वर्ग अग्राह्य करिवो नाही। तेबे प्रिय माने प्रभु जीशुंकर यही प्रार्थनाटी से कौनसी गिरजा घरे करनथिले, मंदिर मध्य करनथिले, ए प्रकार की ऊपर कोठरी रे मध्य यही प्रार्थना करा जाए नाही। आ कह जाउची जे एहा ताहांकर शेष रात्रि समयर प्रार्थना। यही स्थानरू से अल्प समय पर शत्रु मान को हस्तरे धरा जिबे बा शत्रु माने ताहांकु बंदी करी नहीं जिबे, विचार करिवे एवं निर्मम भावरे ताहांकु दंड विधान करिवे बा तांकु दंड देबे, तांकु हत्या करिवे। सेथिपाई मृत्यु पूर्वरु शेष रात्रि रे जेतेबेले ताहांकर प्राण मृत्यु सरिकी शोकाकुल हेउछि, से प्रकार समय रे से को विषय इच्छा कले, ए गोटे विषय इच्छा कले नुहे कि सारा जगत ताहांकु अग्राह्य करुथबा समय रे ए प्रकार की ताहांकर शिष्य माने जो माने अल्प मुहूर्त परे ताहांकु छाड़ी की जे जा बाटरे पळी जिबे, ए प्रकार समय रे केही जणे भी ताहांकु सपोर्ट करिके ठिया हेबे नाही, केही जणे भी ताहांकर सपक्ष रे कथा कहिबे नाही। जो माने ताहांकर अनुगमन करुथिले सेमानकर मुख निरुतर रहिला, सेमाने किछि कहि पारले नाही, जदिबा किछि कहिथिबे सेमानकर स्वर सुना गला नाही, को मानकर स्वर उच्च हला, को मानकर आवाज बेसी हला। से दिन शत्रु मानकर नुहे कि जो माने ताहांकर प्राण को छिन्न करने को चाहूले, जो माने ताहांक विरुद्ध रे शत्रुता करने को चाहिए, जो माने ताहांको एपरिकी कालबरी क्रूसरे मारिदेवा को चाहिए, सेमानकर स्वर उच्च हला। प्रिय माने बेले बेले से प्रकार हुए प्रभुंकर पिलामानकर जीवन रे मध्य आपणकर वॉइस आपणकर स्वर क्षीण हो जाए किंबा सुना जाए नाही, आपण चिल्ले चिल्ले कि कहले मध्य ताहा शुभे नाही। अपर पक्षरे शत्रुर चित्कार, शत्रुर थटा, शत्रुर निंदा अपमान तार स्वर एते बेसी हुए, आउ लगे जे सेगुड़िक ही सबकिछि परिस्थिति को नियंत्रण करुअछि। ईश्वर पुत्र जीशु ख्रीष्टंकर जीवन रे आममानकर त्राणकर्तांकर जीवन रे से प्रकार परिस्थिति आसीथिला एवं से एकाकी से सबुर सम्मुखीन होउछंती। आ ए प्रकार परिस्थिति दे जीवा बेले जेतेबेले मृत्यु संगे सामना सामनी होउछंती, से प्रकार समय रे से गोटे विषय जहा आरंभरु करि आसी अछंती ताहाकु मध्य करिबाकु इच्छा कले, ताहा होछि पितांक चरण तळे प्रार्थना करिबा। भाई भणी माने आममानकर सारा जीवन रे ए अभ्यासटा रही थाओ, आउ एहा एते बलवत्तर रहू जेपरिक आममानकर शेष मुहूर्त रे थिबा बेले मध्य एहा ही आममानकर शेष कार्य हबो पितांक चरण तले। आ जानती कि प्रभु जीशु गेसिमनी रे से दिन ए प्रार्थना कले, जो प्रार्थनार विषय आपण एवं मु आज ध्यान करूछु, किंतु से गलगथा रे मध्य कालबरी क्रूसरे मध्य प्रार्थना को बंद कले नाही, आरंभरु शेष पर्यंत प्रार्थना रे जारी रहिले। जदि बा भयंकर भावरे दारुण जंत्रणा रे जंत्रणाग्रस्त हेले, सर्वांग शरीररु रक्तर धार छुटुथिला एवं शरीर वेदनाग्रस्त होउथिला, से प्रकार समय मध्य से अवशिष्ट से अल्प शक्ति को कौनसी मते साउटिकी पितांक निकटरे से प्रार्थना उत्सर्ग करुछंती। आ तांकर सेठारे प्रथम बाणी रे से प्रथम प्रार्थना बोली मु कहिबी कहयाकु गले
ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା କ୍ରୁଶରେ, ହେ ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏବଂ ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ତାହାଙ୍କର ଶେଷ ବାଣୀ ବା ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ହେ ପିତା ତୁମ ହାତରେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶେଷ। କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତାହା? সেই প্রকার জীবনকু কি পিতা কহিবে নাহি এ নিশ্চিত রূপে মোহর প্রিয় পাত্র অটে, এহাঠারে মু পরম সন্তুষ্ট অটে। ভাই ভণী মানে যেতবে সে বাপ্তিস্ম নেইকি জলরু উঠি আসুলে বাক্যরে লেখা যায় সে প্রার্থনা কলে বলিকি আউ সে প্রার্থনা করুথিবা সমୟରେ ହିଁ আকাশ উন্মুক্ত হেলা বা স্বর্গ উন্মুক্ত হেলা, স্বর্গরু ଏହି বাণী হেলা এবং পবিত্র আত্মা কপোত রূপে তাহাଙ୍କ উপরে অবতରଣ কলে এবং ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ। প্রিয় মানে প্রার্থনার জীবন যাহা পিতাঙ্ক নিকটকু কেবল ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଧ୍ୟାନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏବଂ ଏଇ ଗେଥ୍ସେମନି ବଗିଚାରେ এই ଶେଷ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଗତ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିଅଛୁ। କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି, ତାହାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଏକ ନିଃସଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। କେହି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକାକୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତବାସୀଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଏକମତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ କି? ସେତିକି ବି ସମୟ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ? ସେତିକି ବି ସମର୍ପଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ? ସେତିକି ବି ତ୍ୟାଗ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମମାନେ କାଟୁଛୁ, କି ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ? ଅଥଚ ଆମମାନେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମମାନେ ହେଉଛୁ ବଡ଼ ଅନୁଭବୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବଢ଼ିଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପକ୍ୱତା ଆସେ। ବର୍ଷ ସାରା ଗିର୍ଜାକୁ ଆସୁଥିବା, ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ଗୀତ ଗାଉଥିବା, ସବୁକିଛି କରୁଥିବା, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏମାନେ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି କିଏ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକମତ କେବଳ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ନମ୍ରତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ପିତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବେ। ମାତ୍ର ସେ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉବୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉବୁଡ଼ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପୋଶ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ହଜିଯାଇଛି। ଆମମାନେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ତ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବାଟା ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଉବୁଡ଼ ହେବା ଦୂରର କଥା। ଅନ୍ତତଃ ଘରେ ଥିଲେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚୌକି ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଲଗାव ଆସିଯାଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମମାନେ ଚୌକିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ସିଂହାସନରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଛାମୁରେ ଦଣ୍ଡବତ ହଉ, ଉବୁଡ଼ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଏ, ଆହେ ଆସ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ନିବେଦନ କରିବା ବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ନତ କରୁ, ନମ୍ର କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାକୁ ନତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଥର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ, ଏହା ଏକ ସନ୍ତାନୋଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ସେ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହଁ, ନମ୍ର ଭାବରେ କଲେ ସତ କଥା, ଏକାକୀ କଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବ୍ରି ପତ୍ରର ଲେଖକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ପରାମର୍ଶ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ଛାମୁକୁ ଆସୁ, ଆମମାନେ ସାହସର ସହିତ ଆସୁ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ କିଏ ବସି ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସାହସ ଦିଏ,
ତାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିବା, ସେ ସନ୍ତାନଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବାପାଙ୍କ କତିକି ସନ୍ତାନ ଯେ ପ୍ରକାର ଆସେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶିଖେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ପିତା ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କର। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଗତ ଥର। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ଏକ ପର୍ସେଭେରିଂ ପ୍ରେୟାର। ସେ ଲାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଣା ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉ, କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଆମମାନେ ଆଶାହୀନ ହେଇଯାଉ, କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, ଆମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରୁନା। ଯଦିବା ଏଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛୁ, ମୁଖସ୍ଥ କରିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ଓ ଏଇ ବିଷୟଟା ମୁଁ ମାଗିଲି ମାତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମିଳୁନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଅଭିମାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମଠାରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ ଯହିଁରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୁକ 18 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଲେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ବା ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଡ୍ୟୁଟି ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆପଣ ଖିଲାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖିଲାପ କାହିଁକି ଏତେ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଓ ଆମମାନେ ତ ସେଥିରେ ଖିଲାପ କରୁନା। ଏବଂ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, କାହାର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ି କରୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ନ ଖସେଇଛୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼ୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବାର ମନୋଭାବ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଜି ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ। ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରେୟାର ମୋର ପାୱାର, ଲେସ୍ ପ୍ରେୟାର ଲେସ୍ ପାୱାର, नो प्रेयर नो पावर। ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ଅଟେ। ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ସେତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପାଇବେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ମଜବୁତ ହେବେ। କମ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ହେବେ, କ୍ଷୀଣ ହିଁ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ଜୀବନ ହିଁ ନଥିବ। କାରଣ କେହି ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ନେବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଯେମିତିକି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ ଅହରହ ନଉଛୁ, ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନନଷ୍ଟପ୍ ନଉଛୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶ୍ୱାସୀର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବିରତ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ସେଇ ବିଧବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଲୁକ 18 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯାହା ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଲା। ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଭୟାଳୁ ନଥିଲେ, ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ, ବିଧବା ବିଚାରୀକୁ ସେ କାହିଁକି ବା ପଚାରିଯିବେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଥରକୁ ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କାକୁକ୍ତି ମିନତି କଲା, ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ନ କରେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବାରବାର ଆସି ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବ। ବିରକ୍ତ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଧବାର ସମସ୍ତ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାର କେସ୍ଟାକୁ ମୀମାଂସା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ହେଲେ ହେଁ ନିରନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା କାକୁକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଅଦେଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କରନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଭୁଲ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମର। ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଥକି ପଡ଼ିଛୁ, ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଆସିଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି, ତାହା ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମର୍ପଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। କାରଣ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଯଦି ହେଇପାରେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ, ତଥାପି ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ।
भाई भणी माने दुईटी इच्छार विषय एठारे आम देखुचु गोटे हूँ पितांकर इच्छा एवं आउ गोटे हूँ पुत्रंकर इच्छा बा प्रभु जीशुंकर इच्छा। पितांकर इच्छा कौन ताकू अग्राधिकार दियाजिब पुत्रंकर इच्छा से जदि बा अग्राधिकार दे पारिबे मात्र से कहउछंती ना हे पिता तुमर इच्छा को मो अग्राधिकार देवा को चाहे तुमर इच्छा होची प्रथम मोर इच्छा होची द्वितीय बा परवर्ती मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा। भाई भणी माने केते थर आमने प्रभुंकर निकट को प्रार्थना तो आसीचु किंतु कहार इच्छा को बलवत्तर करी आसीचु ईश्वरंकर इच्छा को प्रभुंकर इच्छा को ना निजर इच्छा को आमनकर प्रार्थना को जदि अनुध्यान करू कह गले जदि आमनकर प्रार्थना को टिके एनालाइज करू ताहाले आमनकर अधिकांश प्रार्थना आमनकर स्वार्थ केंद्रिक नुहे कि जहाँ जाकुब ताहांक पत्र लिखती तो माने मागी थाओ किंतु पाई न थाओ कौन पाई न थाओ कारण निजर सुख अभिलाष निमंते निजर स्वार्थ को आखि आगरे रखिकी निजर इच्छा को केंद्रीभूत करिकी तो माने मागी थाओ पितांकर इच्छा को प्रायोरिटी दे न थाओ प्रभुंकर इच्छा को प्रायोरिटी दे न थाओ आ से प्रकार प्रार्थनार उत्तर मिलिब नाही। भाई भणी माने जोहन ताहांकर चिटाउरे लिखते जेतेबेले आम माने ताहांकर इच्छा अनुसार कौन सी विषय मागु ताहाले आम माने ताहा पाई सारिचु बोले कि मने करिवा दरकार कहीं ताहा निश्चय पाइबा कारण जहाँ किछि आम माने ताहांक इच्छा अनुसार प्रार्थना करू सही प्रार्थना निश्चित रूपे सुना जाए स्वर्ग रे परमेश्वर सही प्रार्थनार उत्तर दियंते आउ से दिन प्रभु जीशु एहाकु ही निजर प्रार्थना रे प्रदर्शन करुथिले शिष्य माने ताहा शिखिले कि हाँ ताहा से माने शिखिले से जीवन रे से माने प्रयोग कले साधु पाउल ताहा शिखिले कि हाँ से ताहा शिखिले से कहले मु क्रूश रे हत हो सारी मु निजर इच्छा को बिल्कुल कार्यकारी करूना जहाँ किछि सेई दिन दमशेक पथरे मु जहाँ कहली प्रभु जीशु को हे प्रभु एणिकी मु कौन करिबि बोली तुमे इच्छा करूअछ आउ से दिन ठारू एते वर्ष हलाणी हे राजन अग्रिपा मु से स्वर्गीय दर्शनर अबाध्य हे नाही मु निजर इच्छा को जाहिर करे नाही मु मोर प्रभुंकर इच्छा को पालन करी करी कार्यकारी करी करी चलीछि। भाई भणी माने सेटा होची ख्रीष्टीय विश्वासर जीवन से होची जने विश्वासीर जीवन आम मानकर इच्छा नुहे आम मानकर इच्छा जेते चमत्कार देखा जाई पारे जेते लोकप्रिय हेई पारे जेते उच्च कोटीर हेई पारे मात्र सेटा हमर इच्छा किंतु स्वर्ग रे जने प्रभु अच्छंती आ ताहांकर इच्छा साधित हो एटा माने आदर्श प्रार्थना रे सब बेले प्रार्थना करी आसीअछु स्वर्ग रे जेपरी सही परी पृथ्वी रे मध्य तमर इच्छा सफल हो काहे कि ताकू स्वर्ग बोली कुहा गला एवं एहाकू मर्त्य बोली कुहा गला कारण होची स्वर्ग रे गोटे विषय सब बेले साधित हुए ताहा होची केवल पितांकर इच्छा आ अन्य कहार इच्छा रे नुहे कोनसी प्रधान दूतंकर इच्छा नुहे अन्य कोनसी दूतमानकर इच्छा नुहे किरुवमानकर इच्छा नुहे सेठारे थिबा विश्व प्राचीन अंकर इच्छा नुहे कि अन्य कौन सी प्राणी मान इच्छा नुहे जनकर इच्छा केवल स्वर्ग रे साधित हुए आउ सेतिपई ताहा सुरम्य स्थान शांतिर स्थान आनंदर स्थान जीवनर स्थान सबुठारु उत्तम स्थान बोली कहा जाए स्वर्ग बोली ताको ना दिया जाए कारण सेठारे जनकर इच्छा साधित हुए এই পৃথিবীর যেতবে সেই ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧିତ ହେବାରେ ଲାଗିବ এই ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ହେଇଯିବ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଅଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନଥିବ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସାଧିତ ହେବ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରୁଥିବା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ही से नूतन पृथ्वी को अधिकार करेंगे आपण से पृथ्वी निमंते प्रस्तुत हवा को चाहते कि ताहले प्रार्थना रे निजर इच्छा को रखंतु ना प्रभुंकर इच्छा को आपणार करंतु एवं प्रभुंक इच्छा निकट रे निजको समर्पित दियंतु कारण मन रखंतु जेतबे प्रार्थना उत्सर्ग करछंती प्रभुंक चरण तळे से प्रार्थना को तांको हाथ रे छाड़ी दियंतु निजे नहीं आसंतु नाही ताहा तांको हाथ रे रहू कारण से जानती कौन देबा को हबो केते बेले देबाको हबो केमिति देबाको हबो केते देबाको हबो ए सब विषय से सठिक जानती आपण एवं मु जानुना एवं को विषय दिया जीव को विषय दिया जीव नाही एहा मध्य निर्णय करबाको से ही भल रूपे जानती सेथिबाई आसु आम माने आजिर प्रार्थना रे निज निज को केवल नुहे निजर इच्छा को प्रभुंक चरण तले समर्पण करदेबा कहवा हे पिता मो इच्छा रे नुहे किंतु तुम इच्छा रे मोर ई प्रार्थनार उत्तर दियो प्रभु आम को ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।
नमस्कार। मु विश्वास करुच्ची जे प्रभु आज संध्यारे आम संगरे कथा कहते प्रभु तांको दासों को व्यवहार करिसेंती शक्तियुक्त भाव में आत्मांकर अभिषेक दे आउ प्रकृत प्रार्थना सही प्रार्थना जहाँकि परमेश्वर इच्छा समर्पित अटे। प्रार्थना या नुहे भाई भाई माने आम इच्छा को परमेश्वर इच्छा लदी दबा। प्रार्थना होची प्रकृत प्रार्थना यह जे परमेश्वर इच्छा को आम जीवन रे स्वच्छंद रे ग्रहण करवा। आउ प्रभु आमानकर से प्रार्थना को आउ से स्वीकार करते ग्रहण करते कारण आमे तांको इच्छा अनुଯାयी जहाँ किछि मागो आउ से आमान को प्रदान करते। आसंता माने ये समय प्रार्थना को जीवा आमने प्रभु निकट रे आमानकर सबु निवेदन प्रार्थना को आमने समर्पण करवा प्रार्थना करवा। करुणामय स्वर्गस्थ पिता आमानकर प्रेममय प्रभु ये संध्या काल रे तुम्हें आमान को तुमरी दासंक द्वारा हाँ प्रभु तुम्हें कथा कहल। हे प्रभु आउ धन्यवाद दूचु तुम दासं को से वाक्य प्रचार जो अभिषेक देच प्रभु आउ तुम्हें तांकर सेवा कार्य को तांको परिवार को तांको पिलामान को तुम्हें विशेष भाव में आशीर्वाद करो एवं प्रभु तुम दासों को आहरी शक्ति बल सामर्थ्य दे अधिक तुमर गौरव निमंते व्यवहार कर बोली आमने प्रार्थना करुछु। प्रिय प्रभु यही समय मैंने विशेष भाव में यूनियन चर्चर प्रत्येक परिवार को तुम हस्तर समर्पण करुचु। प्रत्येक परिवार पितामाता प्रत्येक परिवार युवा युवती प्रत्येक परिवार पिलामान को समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर। विशेष करी मंडलीर जो मैंने वयोज्येष्ठा हे प्रिय प्रभु आमने समान का निमंते तुम अनुग्रह लोड़ुअछु प्रभु तुम्हें समान को जान प्रभु आउ समानकर बाध्यक जनित समस्त अप्रभु असुस्थतारू दुर्बलतारू समान को अप्रभु तुम्हें रक्षा करो एवं प्रभु तुमर अदृश्य हस्त एवं तुमर अदृश्य उपस्थिति समान को संगरे रहू बोली प्रार्थना करुछु। एतले प्रभु आमने विशेष भाव में तुम निकट रे प्रभु आमने विनती करुछु। हाँ प्रभु आमानकर जो भाई भणी माने आज अप्रभु से महामारी सकाशु प्रभु जो मैंने आज से पॉजिटिव आक्रांत होती प्रभु आमने प्रार्थना करुछु। आमान प्रत्येक भाई भणी मान को तुम्हें दया करो प्रभु तुमर दिव्य सुस्थता तुम्हें प्रदान करो। एतले प्रभु आमने अप्रभु प्रार्थना करुछु आमानकर अप्रभु निभा नायक भौणीकर परिवार निमंते प्रभु तुमर दासी को तुम्हें तुमर स्वर्गीय निवास को तुम्हें डाकी नहींच। हाँ प्रिय प्रभु एतले से शोक संतप्त परिवार प्रत्येक को तुम हस्तर समर्पण करुछु। तांकर झीओ पुओ तांकर ज्ञाति कुटुंब मान को समर्पण करुछु प्रभु ए दुखर समय तुम्हें समान को भांगी पड़ा को दियो नहीं मात्र प्रभु तुम्हें समान को तुम कोଳରେ आउजे दियो तुमर अप्रभु अदृश्य हस्त समान को आउंसी दो तुम्हें तुमर सांत्वना तुमर शांति समान को प्रदान कर बोली आमने प्रार्थना करुछु। प्रिय प्रभु यही समय विशेष भाव में प्रभु तुम निकट रे हाँ प्रभु आमने विनती करुछु आमानकर मंडलीर प्रत्येक को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो। प्रभु प्रार्थना करुछु। हाँ प्रभु आमानकर जो युवा युवती मैंने पाठ पढ़ुंट परीक्षा दौरान प्रभु तुम्हें दयाकर विशेष करी एबे जो जी एवं प्रभु नीट परीक्षा अच्छी आउ से निमंते आमने प्रार्थना करुछु पिता आउ तुम्हें दयाकर ये परीक्षा जो मैंने अप्रभु देवाक जाऊँच समान को तुम्हें साहाय्य करो अनुग्रह दियो प्रभु जेपरी से कुशल भाव में परीक्षा देवाक पारे साहाय्य करो। प्रिय प्रभु आमानकर डाक्तर माने नर्स माने आमानकर स्वास्थ्यकर्मी माने आमानकर पुलिस भाई भणी माने समस्त को तुम अनुग्रह करो। आमान देशर अप्रभु नेता नेत्री मान को तुम हस्तर समर्पण कर पिता तुम्हें दया करो। हे प्रिय प्रभु आम देश को रक्षा कर बोली आमने प्रार्थना करुचु। आम देशर विरुद्ध रे जो समस्त शक्ति कार्य करुचु प्रभु प्रार्थना करुचु से समस्त शक्ति को तुम्हें प्रतिहत कर प्रभु आमर देश को भारत वर्ष को प्रभु तुम्हें रक्षा करो। भारत वर्ष रे तुमर शांति आसो भारत वर्ष रे प्रभु तुमर राज्य आसो भारत वर्ष रे प्रभु लोक माने तुमर सत्यता को ज्ञात हुंतु कारण तुम्हें कहिଛ तुम्हें माने सत्य जानिबो आउ से सत्य तुमान को मुक्त करिवो। हे प्रिय प्रभु आमने प्रार्थना करछ आमानकर देश को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु। प्रभु एत बेले ए देश रे वास करथि प्रत्येक तुमर प्रिय लोक मान को
आशीर्वाद कर प्रत्येक पाड़क प्रचारक मान निमंते प्रार्थना करुचु सेवक मान निमंते प्रार्थना करुचु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर आज प्रभु जो भाई भणी मैंने ये प्रार्थना सभा जोग देइछंती प्रभु तुम्हें प्रत्येक को जानिच व्यक्तिगत भाव में प्रभु प्रत्येक को तुम्हें दया कर जार जहाँ किसी समस्या अच्छी दुख अच्छी चिंता अच्छी अभाव अनाटन अच्छी तो प्रभु तुम्हें प्रत्येक को परिदर्शन कर प्रत्येक को प्रभु तुम्हें स्पर्श कर प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु ये दिन मान करे प्रभु तुम अदृश्य हस्त आम को तोड़ी धरू प्रभु कारण तुमरी अप्रभु अदृश्य हस्तरे प्रभु तुमर से अप्रभु महाशक्ति रे केवल प्रभु आम उद्धार पाई परिबो एणु प्रभु तुम्हें दया कर साहाय्य कर प्रभु धन्यवाद दूचु आज तुम्हें आम को एक तुम समय देल प्रभु तुम पवित्र पाद तले बसी तुम सेवा आराधना करने प्रभु ये आउ थे निज निज को तुम हस्तर समर्पण करी यही सामान्य प्रार्थना आम मान उद्धारकर्ता प्रभु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन आमने शेष आशीर्वाद भिक्षा करवा एतले पिता परमेश्वर असीम प्रेम प्रभु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र धर्मात्मा चिरंतन शांति शक्ति एवं सुमधुर सहभागिता चेतना आम मान सहित ख्रीष्ट प्रत्येक विश्वासी भाई भाई मान सहित यही समय ठार ख्रीष्ट जीशुंकर द्वितीय आगमन पर्यंत सदा काल संगे संगे रही मंगल एवं उपकार करंतु आमेन। समस्त को नमस्कार ईश्वर आपण मान आशीर्वाद करंतु दयाकोरी आउ किसी समय आपण परिवार भाव में बसी प्रार्थना क्षेपण करें आमर स्क्रीन रे जो प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक अच्छी आ देखी आपण मैंने प्रार्थना करें प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।